Namaste, Yes. Prachi. I'm recording this Hi, session how are so you? that Namaskar. Namaskar ji. Yeah, I think that would be the best one. There was some issue with my Zoom. I don't know what happened. I'm super sorry for the delay, guys. No. I mean, we should start now. Okay, so Okay. you can So, ask the questions. What? Prachi, I've given the context to Chef Gaur and about process, about restaurant times, about the agenda for the call that we are Right. covering. A specific particular piece on F&B restaurant consultants who've done the work in India, and we are reaching out to the top consultants, and we have some questions for them who we would want to hear answers from them. Though we've done our research on the internet, but to talk to them and to get to know more about them, their life, and their journey. So you can shoot with your मैं समझ गया हूँ questions सब now. चीज हमें हाँ ये सर सब चीज समझा yes दी है मैं समझ गया हूँ बेहतरीन है सर, ये तो फिर मेरे को आसानी होगी आपसे क्वेश्चंस पूछने में. करेक्ट So basically, the idea here, Amit has already told you. So I own a property called The Restaurant Times, in which I really write about the restaurateurs, their journey, their own ideas, few topics related to F&B industry. But this time I really wanted to write about people who actually think about all these ideas and they give them to the restaurateurs and then they portray it ahead. So herein I look forward to asking you a few questions. I'll ask you the questions here also, and I would really request if you can type those things and send me back. It would be really easy for me to just pick few extracts from here, a few from there, and make a blog out of it. So before I go ahead with these questions, Chef, I would really start this that how come you are here as a restaurant consultant? Like, what was the initial point? Or where was that, coming from that, yes, now this is what I want? Okay, it's a very I mean ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है I was sitting at Bangalore airport and like almost 9 years back and my boss has given me a very odd time flights. तो वो मेरे को I was the corporate chef and I was handling Panoramic Group as the executive corporate chef. Okay. और वो मेरे जो ट्रैवलिंग प्लान थे तो वो ट्रैवलिंग प्लान मेरा बहुत ज्यादा ऑफ टाइम में फ्लाइट्स होती थी रात को 2 बजे. आई लिव इन मुंबई तो मुझे बहुत हैक्टिक फील होता था. तो आई वॉज सिटिंग एट बैंगलोर एयरपोर्ट एंड आई डिसाइडेड कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जो मैं अलग अलग होटल्स के अंदर जाता हूँ बिकॉज वी हैव 34 होटल्स. सो आई ट्रैवल टू 34 होटल्स एंड देन आई फाइंड कि जो इतने सारे होटल्स हैं इनमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और अधिकतर जो प्रॉब्लम्स है वो है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कम्युनिकेशन गैप द फर्स्ट थिंग. दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि द पीपल हु आर वर्किंग दे डोंट अंडरस्टैंड द गोल मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी. दे आर नॉट कनेक्टेड. दे आर फिजिकली कनेक्टेड. फिजिकली वो वहां प्रेजेंट है. फिजिकली दे आर giving their 10 hours 12 hours 15 hours but they are not connected with the company goal. तीसरी चीज, there is no person there to teach and train and tell them what is right rather than who is right. And then sitting at Bangalore airport, I decided ki I quit this job and I start restaurant consulting. And that was my one of the bad decision because when you're working as a corporate chef, you have a very handsome salary. Correct. And That's when you true. leave a handsome salary and your daily routine, nobody is there to give you the job. It will take time. And then 1 year I was doing nothing. So I was just thinking for this restaurant consulting. So 1 year I was thinking how I can consult people and I meet people and everybody has said, okay, we'll let you know. So the 1 year was like, doing nothing. Correct. After 1 year, I meet one of the gentlemen. His name is Mr. Deepak. Mr. Dilip. Mr. Dilip Chaudhary. He is the owner of one of the very big property in Gujarat. His name is Shanku Water Park. They have a water park, they have naturopathy, and they have hotel. So Shri Deepak Chaudhary ji, like he is my age group, and he come from US, and he wants certain changes at the property. And from there, I got my first contract, and still I am working with them. I am connected with them. Whenever they have any
challenges, they contact me. And from there, I started this, consulting business. And after that, I find, yes, there's a big scope of consulting, because when you consult people, there are two type of consultant in this earth. The first, who tell you what to do. The second one, who are with you and they tell, हो गया ये, आप चेक कर लीजिए, हो गया, जो हम बोल रहे हैं वो हो गया. तो एक आपने उसको बोल के बताया, वो कंसल्टेंट एवरीवेयर है, मतलब हर जगह है वो कंसल्टेंट. मैंने एक चीज और देखी कि इस कंसल्टेंट बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है. वो गैप ये है कि अधिकतर जितनी भी प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट्स होते हैं या किसी के साथ काम करते हैं, उनका एंगेजमेंट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उनका सेपरेशन होता है तो एक दूसरे को बोल भी नहीं करते और एक दूसरे के बारे में बोलते हैं. दिस इज द फैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. करेक्ट. सो मैंने इस कंसल्टिंग बिजनेस को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया. मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में कितने तरीके के कंसल्टेंट हैं. तो आई फाइंड देयर आर 3 टाइप ऑफ कंसल्टेंट इन दिस इंडस्ट्री. वो एक कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा कम है, मतलब दे आर वेरी एक्सपीरियंस इनटू द बिजनेस एंड देयर फीस आर वेरी नॉमिनल. अब जब वो कोई भी कंसल्ट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को करते हैं, तो वो कंसल्ट करते हैं, उसके बाद में उनका जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि दे वांट ए कमीशन फ्रॉम द वेंडर्स, बिकॉज देयर आर ह्यूज कमीशन फ्रॉम द वेंडर्स. सो इस तरह के कंसल्टेंट होते हैं जो शुरू में बहुत अच्छे पॉलिश होते हैं, जुड़ते हैं, और उसके बाद में फिर उनको फोन करते रहो, वो फोन ही नहीं उठाते, और उसके बाद बहुत बुरा सेपरेशन होता है. दूसरे तरह के ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जो बेचारे काम कर रहे हैं, उनको कहीं भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला हुआ है. दे डिड वेरी गुड जॉब और उनके पास रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है. और तीसरे तरीके का मैं कंसल्टेंट बनना चाहता था, जो मुझे लगा कि मैं इस तरह का कंसल्टेंट बनूं कि मैं ओवरऑल एक ऐसी कंसल्टिंग सर्विस दूं जहां पर मेरा नॉलेज, स्किल्स और उसके बाद मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम उसको इन्वॉल्व करके किस तरीके से इस बिजनेस को इस तरीके से करें कि एक कंसल्टेंट किसी भी प्रॉपर्टी के साथ में उस तरीके से हो, वो उसका बड़ी हो, वो उसका फ्रेंड हो, वो उसका बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, मतलब एक रिलेशन बनाने के लिए मैंने इस बिजनेस को चालू किया. सो आई स्टार्टेड दिस कंसल्टिंग बिजनेस फॉर मनी, बट नाउ मोर इनटू मेकिंग रिलेशनशिप विद द पीपल एंड हेल्पिंग पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. तो यहाँ से ये रेस्टोरेंट कंसल्टिंग का बिजनेस चालू हुआ, जिसके 1 साल बहुत खराब थे. आई हैव अ लॉट ऑफ फाइट विद माय वाइफ, माय पेरेंट्स. They told, अरे यार तू नौकरी छोड़ के बैठ गया, अब तू क्या करेगा? And I have nothing to do. Actually, I have nothing to do. कुछ भी नहीं था. During this COVID, again this time came. Like COVID के अंदर, because जितने भी clients थे उन सबके उन को heavy loss हुआ. तो heavy loss हुआ तो उनके रेस्टोरेंट शट डाउन हो गए. तो वहां पर फिर जो हमारी रेवेन्यूज थे वो बिल्कुल खत्म हो गए. लेकिन उस वक्त भी हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को अपने साथ रखा, और हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे हमने उनको बोला, चलो ठीक है, आप खाना नहीं बना रहे हैं, आप मार्केटिंग करते हैं. कोविड हमको मार्केटिंग करने से थोड़ी रोक सकता है, कोविड हमको घर से बाहर निकलने से रोक सकता है. सो ड्यूरिंग दिस कोविड हमारे जो भी क्लाइंट्स थे, सो वी मार्केट देम वेल ऑन इंटरनेट एज वेल एज वेयर एवर इट्स रिक्वायर्ड. तो जैसे ही कोविड चालू हुआ तो हमारे जो क्लाइंट्स जो एक, बिकॉज लॉसेस सबने खाए हैं, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ने लॉस खाया है. एवरीबडी हैज, एवरी people in the world has suffered from this. किसी को ज्यादा हुआ, किसी को कम हुआ. So हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जैसे ही उनके प्रोजेक्ट चालू हुए, तो प्रोजेक्ट चालू होने के बाद जो सेल्स थी वो ऑटोमेटिक ज्यादा आने लगी. फिर हम लोगों ने क्लाउड किचन खुलवाया. So दिस इज ऑल वी स्टार्टेड दिस कंसल्टिंग बिजनेस. में बहुत लंबी कहानी है, 12 घंटे तक बोलूंगा तो भी खत्म नहीं होगी. No, that's like amazing story. मजा आएगा इसको लिखने पे भी. And so this is like very confined and very realistic story. मतलब ये मेरे को काफी ज्यादा ऐसा लगा कि हाँ, ये लोग बनावटी स्टोरी नहीं है. This is like something that you made it and you're doing good and great in it. So I am sure एक तो देखो, family was a major challenge that you faced, like when you shift your job and everything was going off track. But I'm very certain of the fact that there would be many challenges that you actually faced throughout your journey till today that you are facing. So what were your top 3 challenges that you faced entirely, and how did you overcome them? Okay, जिंदगी में 3 जो सबसे बड़े चैलेंज हैं, वो एक चैलेंज तो कब से चलता हुआ आ रहा है, वो ये है कि कन्विंसिंग पीपल.
I cannot convince my mama, I cannot convince my wife, I cannot convince my daughter. So ये जो कन्विंसिंग है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को कन्विंस करना। अब हम कोई भी चीज किसी को कुछ बोलते हैं, तो उस कोई भी चीज को हम बोलते हैं तो वो हम उसके दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज की इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। नाउ ये जो दो ऑब्जेक्टिव हैं ये ओनर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेस्ट as well as in the interest of their career. Correct. Now they don't think about companies, because if they think about companies तो वो automatic line up हो जाएगी। because इस इंडस्ट्री में जो लोगों का एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। आजकल लोगों का जो एंगेजमेंट है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो गया है, और इस शॉर्ट टाइम के एंगेजमेंट में ये एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनाती है। तो जो तीन बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर एक आप मानिए कि जो मैन पावर काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड टेलिंग देम देयर जॉब डिस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर ये तीन प्रॉब्लम है कि आदमी है मिलते नहीं है, मिलते हैं तो रुकते नहीं है, रुकते हैं तो अच्छा काम नहीं करते। तो ये जो चीजें हैं ये चलती आ रही है और आगे भी चलती जाएंगी। दूसरी जो प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री की वो ये है कि जो रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं वो अभी नहीं समझ पाए हैं कि अगर टेक्नोलॉजी बिजनेस दे रही है तो टेक्नोलॉजी में पैसे डालने चाहिए। ये एक बहुत एक पॉइंट है कि मतलब एक एक बेसिक चीज है जो मुझे लगता है बहुत सारे ओनर्स दे हम लोग क्या है, हम लोगों को सबको फ्री में सब कुछ चीज चाहिए, और ये फ्री इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो ये जो एक पॉइंट है कि कि टेक्नोलॉजी आपको बिजनेस दे रही है, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप टेक्नोलॉजी में पैसे नहीं डालोगे, आप टेक्नोलॉजी को बोलोगे कि इसको मुझे फ्री में दे दे। एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आई मीन अवेलेबल। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ओनर्स को बताना कि भैया अब एच जो आप बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, उसके साथ में टी भी लगाइए, टी इज टेक्नोलॉजी। सो इफ यू शुड बोले एच टी, तो हम वो एच पकड़ के बैठे हैं हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल, तो टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो इंटरनेट है, ये इंटरनेट इज ए बिगेस्ट आई थिंक इट्स a biggest वरदान फॉर एवरीवन टू कम्युनिकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। It's I mean you can with the use of internet you can reach to the audience without meeting them. It's a great source of interaction and reaching to the peoples. But जो हमारी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर अभी भी जो लोग हैं वो अपने पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं, उनकी पुरानी एसओपी है वो उस पर चेंज नहीं कर रहे। और एक सबसे बड़ा वो है कि हम सब जो लोग हैं वो हम लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। अगर कोई रेस्टोरेंट चलता है या नहीं चलता, तो जो रेस्टोरेंट नहीं चलता अगर आप उसको एनालिसिस करोगे तो आप ये देखोगे कि उसके पास में डेटा ही नहीं है। ही डोंट नो कि मेरा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, उसको पता ही नहीं। मतलब ही नेवर नो कि उसका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो पीपल हैं वो दे डोंट एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जो तीसरा चैलेंज मेरे लिए आता है वो ये आता है कि पेशेंस, पीपल डजंट हैव पेशेंस, दे डोंट हैव पेशेंस इन द लाइफ। सो ये एक तीन चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजों के साथ में मैं बहुत टाइम से वर्क कर रहा हूं, और मुझे लगता है अभी आगे और भी कई सालों तक करना पड़ेगा। Absolutely. This is like something, technology is a game changer for any restaurant. That so we can agree on, since we are working in Fossil. So we have proven results that how technology, can emphasize, how technology can boost up your sales, how technology इसके is अंदर your मैं best friend. एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। मुझे लोग कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मेरे से पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है। मैं उनको बोलता हूँ कि एवरी सॉफ्टवेयर इज गुड, ओनली थिंग इज दैट जो इजी टू यूज हो, कम कीज के अंदर आपको आउटपुट ज्यादा दे, दैट इज गुड। मतलब पीपल क्या सोचते हैं कि अगर कोई पूजा, पता नहीं कौन सी पूजा है, पेट, वो ये आईडीएस, ये मुझे लगता है कि ये सॉफ्टवेयर, एवरी सॉफ्टवेयर इज गुड, ओनली थिंग्स कि उसका जो एनवायरमेंट है वो कितना यूजर फ्रेंडली है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी हैज टू बी यूजर फ्रेंडली। तो बस वही है कि लोग समझ नहीं पाते, उनको ये लगता है कि अगर ये सॉफ्टवेयर लगा लिया तो मेरी सेल ज्यादा हो जाएगी,
और फिर वो सॉफ्टवेयर लगाने के बाद अगर सेल नहीं बढ़ती तो वो उस सॉफ्टवेयर वाले के पीछे पड़ते रहते हैं, बोलते हैं कुछ करो कुछ करो कुछ करो, और वो सॉफ्टवेयर वाला बोलता है अच्छा मैं करता हूँ, अच्छा मैं करता हूँ, अच्छा मैं करता हूँ, और कुछ नहीं होता है. So it's about people should understand technology is something to make the work easy. So ये एक चैलेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन That के is बाद the हम जल्दी इसको क्लोज करेंगे बिकॉज आई हैव टू गो also. That's all right, Chef. Even if you want to leave, you can. मतलब if you want to end the call, what I'll do is, I think इनायत ने आपके साथ questions share कर दिए हैं. अच्छा ठीक है. तो आप मुझे या तो आंसर्स को अच्छे से इलेबोरेटिव फॉर्म में, यू जस्ट राइट मी मैं इसको बैक एंड ऐसे ही कर देता हूँ बिकॉज फिर वो आंसर्स आपके काफी लेट हो जाएंगे बिकॉज कल से मेरे ट्रैवलिंग हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत है. और कौन सा क्वेश्चन है बताइए. 6 क्वेश्चन है मेरे पास, और वो भी मतलब आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी हैव टू सिट फॉर दैट. लेट्स डू वन थिंग. इनायत ने आई थिंक आपको क्वेश्चंस शेयर कर दिए हैं, तो इनायत हैज ऑलरेडी शेयर क्वेश्चंस विद यू. So you write back to me whatever answer you think is the most convenient and most apt answer for that, and I'll be very happy to take up the extracts from that and publish it. ठीक है. मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट वेरी important. You interviewed other people also, because there are a lot of consultants who are doing absolutely fantastic job and they need a platform. Correct. Yeah, so we are picking up So the to best reach from to the many industry. people. Yes, reach to many. Yeah, I'm we are nothing. picking up the I'm best from the industry. matlab I find myself nothing. I have not contributed anything very big to the industry, and there are many people in the industry who has contributed a lot to the industry. So I think you can take a call. I mean, just because there's a Rahul told me there is a meeting scheduled, so I come on the line, and I understood your project. You share me your technologies detail, the services you provide to the peoples. And I'm also doing international projects. I'm doing projects in UK and USA and few in Canada and UAE. So UAE also we have our presence, and US we are starting. It's a first two cases I'm doing in US. और इंडिया में भी हैं हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन चलता रहता है वो चीज है. आंसर वो शेफ फॉर दैट पीस आई विल बी इन टच विद यू. आपका कभी मुंबई आना हुआ तो मैं आपके साथ टच में रहूंगा, डेफिनेटली मिलते हैं. आई नो राइट नाउ यू आर इन जयपुर, but for the partnership piece that I will take up with you separately. No, I don't want any partnership. I don't want any partnership. I told you I'm a very different type of consultant. I don't want any partnership. What I do is first I understand your technology. I will go in a very deep, and if I feel that this is going to really help problem for the peoples, free of cost, I'm going to recommend you everywhere in the world. I will endorse you definitely, no problems. I am not looking for any partnership, anything. I mean, if we find your technology is helpful for the people, I will endorse you without any commercial interest or any financial interest. Don't worry. Thank you, Chef. Really appreciate that. But I will still talk to you about this. Regardless, हम आपको हमारे कंपनी के डिटेल्स भी भेजेंगे, रेस्टोरेंट टाइम्स के अलावा, लाइक जो क्वेश्चंस है उसके फॉर द आर्टिकल, so that you can go through it once. Then we are happy, like if you're in Bombay, I'm happy to come meet you and showcase the product to you in person, give you a demo in person. अगर आप yes, अगर आपका मुंबई का if there is no plan, immediate plan in June, let's say, to come to Mumbai, we can schedule a Zoom call as well where we will showcase you our product, so that you also understand के ये product की क्या value add है in the for a restaurant, क्योंकि आप restaurant के जो owners हैं उनसे आप मिलते हैं और आपको पता है उनके challenges और problems क्या है. तो अगर आपको लगता है कि ये product उनके challenges solve कर सकता है, then you can of course recommend us and refer us once you are convinced about the product yourself, because you'll be referring it to your client, and as you believe in relationship building with your clients, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे जो उनको हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन रिलेशनशिप बिल्डिंग फर्दर. हमारा प्राइम जो गोल है वो ये गोल है कि जो भी हमारा क्लाइंट है वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए. दैट इज आवर गोल, कि अगर हम किसी को अपनी सर्विस दे रहे हैं तो वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए. वो ही नहीं बोलना चाहिए अरे अरे हाँ मैं जानता हूँ उसको, अरे यार वो तो फोन ही नहीं उठाता, वो मतलब वी डोंट वांट दिस. We don't want money, we want name.
Of course, no, we definitely believe in the same, ethos like you, like के service अच्छी होनी चाहिए, product अच्छा होना चाहिए, अपने आप word of mouth से business बढ़ता है, and we have seen that in person ourselves in the last 12 years in our company. So definitely I'll be in touch with you. Articles का लिए Prachi will be, and for the content about our brand and all, मैं आपको personally मेरे ID से email भेजूंगा सर, उसका आप एक बार देखो. And then if you have plans to come to Mumbai in the month of June, let's I'll meet. my secretary will keep you informed. Don't worry, we'll get it done. Yes, done चल sir. मैं आपके सेक्रेटरी को भी लूप में रखूंगा फिर, ठीक है, email. ठीक है. नमस्ते अमित जी एंड नमस्ते प्राची जी. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू जी, एंड it was थैंक यू वेरी amazing to मच. talk to you. बहुत कुछ Yes, सीखना है आपसे, बहुत सारी बातें करनी है. पीओके हम पक्का करेंगे, एंड प्लीज आप मुझे yes, आंसर लिख के दीजिएगा. मैं बहुत खुश होंगी उसको लिखने में आगे. नमस्ते. yes. शुक्रिया. Thank you so much, sir. Have a good day. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.